Hello friends, welcome to Manu Law classes. Today we are going to discuss the Daily Hindu analysis of September 24, 2021. So let's look at the important news today. The 76th session of the UN General Assembly is currently going on, and that's why our Prime Minister is in USA. He is meeting the CEO of Adobe and Qualcomm. So he's also meeting the CEO of 5 companies that have invested in India, or they have the significant investment potential, especially in emerging technologies like semiconductor and wireless technology manufacturer Qualcomm, renewable energy company First Solar, software company Adobe, energy system or arms manufacturer General Atomics, and investment management company the Blackstone Group. Okay, and along with that there will be a meeting regarding the India Comprehensive Global Strategic Partnership and Quad Summit with 3 other counterparts. कौन है? US के President Mr. Biden, Yoshihide Suga of Japan, and Mr. Scott Morrison from Australia. उसके बाद टू डाई इन दरांग डिस्ट्रिक्ट का ये न्यूज़ आ रहा है. इसका बैकग्राउंड क्या है कि असम में अक्सर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ असम. ये जो लड़ाई है ये कम से कम लड़ाई नहीं कह सकते आप इसे, पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 1971 से कुछ चला आ रहा है. बिकॉज इन 1971 when the war was going on for the liberation of Bangladesh, so many Bengali speaking Muslims from Bangladesh they migrated to West Bengal, Assam, मेघालय एंड त्रिपुरा. तो यहाँ पे जो ये इशू है ये दरांग डिस्ट्रिक्ट का इशू है, और यहाँ पे पुलिस जो थी वो 800 बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो गवर्नमेंट लैंड 4,500 बीघास ऑफ government land was illegally occupied by these Bengali speaking families, and they were being evicted from that. So that led to the violence, killing 2 people. Then Supreme Court may form panel to look into the snooping charges related to Pegasus. Then the central government has cited some certain reasons that why it is very difficult to conduct the caste census इन इंडिया. तो यहाँ पे जो कुछ रीजंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं. द फर्स्ट इज़ दैट द डेटा व्हेन एवर द कास्ट बेस्ड डेटा इज़ कलेक्टेड इन इंडिया एंड व्हेन इट वाज कलेक्टेड इन 1931 ऑल्सो इट वाज नॉट कंप्लीट एंड नॉट एक्यूरेट. एंड द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस which of 2011 even that also has the technical flaw. उसके बाद that's why because of this problem the caste census, the caste wise enumeration was given up in 1951. Okay, so and the government says that population census is not the ideal instrument for the collection of census data, and already the planning had taken place of census 2021 जो 4 साल पहले से planning चल रहा था. A user manual has been prepared and there was no planning for collecting the caste census data. Now caste census data is an issue, especially after passing of 105th Constitutional Amendment Act 2021, which gives power to the state to draw their own list of OBCs. So since then there is a growing clamor in the country to do the caste census to exactly know the number of OBCs in India. अभी जो सेंसस होता है उसमें हमारे पास SC और ST के पॉपुलेशंस आते हैं. नाउ उड़ीसा में एक क्लियर प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है. यहाँ पे द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन हैज़ बीन टेकन बाय द पीपल, बट इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन people are not turning up at the vaccination center for completing the dose. We will come to editorial at the last. Now some problems are coming up in Gogra region. Gogra is one of the friction point in eastern Ladakh between India and China. तो यहाँ पे एक pass है, the pass is called as Kula Pass. Now earlier what was happening that this Gogra was not a flashpoint between India and China, but after the April-May 2020 standoff and the Gogra becoming one of the friction point, now the villagers who are living around this area Gogra,
Earlier they had access to Kiu La Pass, where they used this area for cattle grazing. But after the standoff, China has built a huge infrastructure over here in this region. Military infrastructure has come up from Depsang Plain to the Pangong Tso Lake in the south, and because of this, the Kiu La Pass has become inaccessible for the villagers. Now, since winter is approaching, so center and state government, especially states government पर हम देखेंगे तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान and UP, they have all started taking efforts to curb the stubble burning, which leads to pollution in the north of India, especially during winter. तो अगर हम देखेंगे ये जो बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ होता है, बर्निंग ऑफ स्टबल, ठीक है ना, खासकर राइस का, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन. सो हरियाणा गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? सो हरियाणा गवर्नमेंट दे विल बी स्पेंडिंग ₹200 करोड़ टू डिसुएड द फार्मर्स फ्रॉम बर्निंग द राइस स्टबल. उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली की तरह डिकम्पोजर यूज़ करेगा, बायो डिकम्पोजर, विच विल बी स्प्रेड ऑन स्ट्रॉ एंड इट विल कन्वर्ट स्ट्रॉ इनटू मैन्योर. ओके, देन there are other measures also which will be adopted. For example, the use of biomass with 50% paddy straw. ठीक है ना, जो बायोमास होता है मतलब क्रॉप कट करने के बाद जो रेसिड्यू होता है जिसको हम बायोमास कहते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 50% शुड बी पैडी स्ट्रॉ, मतलब राइस का स्ट्रॉ होना चाहिए. इट विल बी यूज्ड इन कोल प्लांट्स एज द सप्लीमेंट फ्यूल. देन अ कमिटी हैज़ बीन सेट अप टू लुक फॉर द repurpose that how we can use this stubble for cattle in Rajasthan and Gujarat. So these are some of the efforts which are to be taken by this. Now coming to the next, rupees 7,523 crore order for Arjun MK1A tanks. Now see what is Arjun MK1A tank. So it is a state of the art main battle tank. MBT का full form होता है main battle tank. MK1, it is a new variant of Arjun tank which is designed to enhance firepower, mobility and survivability, and it has 72 new features. अब इसे डेवलप किसने किया है? So it is indigenously designed and developed by Combat Vehicles Research and Development Establishment along with other laboratories of DRDO. Okay, now along with that, an Arjun hub, this is important, an Arjun hub has set up in Jaisalmer. Okay, then DRDO is also taking indigenization of common commanders panoramic site and gunners main site. Now this is the news related to the WHO specifications. So the government has clarified, the health administration has clarified the COVID, that empowered group of COVID-19 vaccine administration headed by R.S. Sharma, they have clarified that UK never raised concern related to the certification of COVID-19 vaccination in India. The only difference between WHO standards and Indian standards are that in Indian standards, in COVID certification, there is requirement of birth here, but in WHO standard, date of birth is also required. Now, the Niti Aayog member Health V.K. Paul has said that India has already achieved the milestone of vaccinating 66% of its adult population with at least one dose of vaccine. Then अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, they have reached 100% COVID vaccination coverage of first dose. एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज़, अब क्या है कि वैक्सीन की रीच को बढ़ाना है, हमें जल्दी से जल्दी 100% टारगेट करना है, एटलीस्ट दिसंबर तक एटलीस्ट वन डोज सबको लग जाए. सो राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, हेल्थ मिनिस्ट्री, that persons with restricted mobility, disabilities and those with special needs can get COVID vaccination at home, and this measure is very necessary to improve the vaccination percentage in India. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फास्टर सिस्टम. तो फास्टर का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं. इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. नाउ यहाँ से क्या होगा कि अगर किसी का ऑर्डर्स ऑन बेल एंड स्टे ऑफ अरेस्ट कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रिजनल अथॉरिटीज़ एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो क्या होगा कि डिले नहीं होगा. ओके, उसके साथ साथ द सेकेंड बेनिफिट इज अंडर ट्रायल्स दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर डेज ऑन to get released, okay, because
what happens? The certified hard copies of the bill takes time to reach the prison. The next is that it will prevent unnecessary arrest and custody of people even after the court had already granted them its protection. क्या क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि they should not be arrested, but because the police station or police officer does not receive the court order, so they can arrest the person. So that has to be lowered. That's why it will help in securing the fundamental rights of life, dignity and personal liberty. तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ फास्टर मीन्स फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर. उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला था कि जो नेक्स्ट टू कीन ऑफ कोविड-19 related deaths हैं, जो the people who have died, their families will get ₹50,000 each. Now there is improvement in that. Now if someone who committed suicide after getting diagnosed with COVID-19, even their family are now eligible to get ₹50,000 as ex gratia payment. but ये जो पेमेंट है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड नहीं देगा, ठीक है, बट इट विल बी गिवन बाय स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. So that is very important to keep in mind. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज़ अगेन stressed wearing the mask is very important to provide protection against COVID-19. So please wear mask in public. We have still to fight the corona. The next is that Prime Minister Narendra Modi is going to announce Pradhan Mantri Digital Health Mission on September 27. So, and under this mission, every person will be provided with a unique digital health ID which will contain all the health records of the person. ओके, तो इससे क्या होगा कि उस पर्सन की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी हो सकेगी. क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि या आप लोगों ने सुना होगा, whenever we go to doctor, so doctor will always ask you the background of your health. ओके, सो अब क्या होगा कि वो रिकॉर्ड डॉक्टर के पास अवेलेबल होगी कि हमारा हेल्थ रिकॉर्ड क्या है. सो डेफिनेटली द मेडिकल इंटरवेंशन कैन बी स्पीड अप and the person will be benefited from it. उसके बाद INSACOG है, इट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ लेबोरेटरी फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ कोविड-19. इसने कहा है कि SARS-CoV-2 के जो इंडिया में कोई नए वेरिएंट नहीं मिले हैं, ठीक है ना. तो इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट है B.1.617.2 B.1.617.2 ये जो वेरिएंट है इसे हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं. इसके जो 3 सब लिनेजेस हैं AY.1, AY.2 एंड AY.3. AY.1 में K417N का म्यूटेशन मिलता है विच कैन एस्केप द इम्यून सिस्टम. सो इंडिया में अभी ये इतने नहीं पाए गए हैं, बहुत कम नंबर में पाए गए हैं. नाउ एक चाइना और ताइवान, दे आर सेपरेटेड बाय ताइवान स्ट्रेट. अब ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेन लैंड चाइना है उसका ऑफिशियल नाम है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने से पहले वहाँ पे एक सरकार थी जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे. बट जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया तो उस सरकार के जो मेंबर्स थे वो चाइना से ताइवान आ गए एंड they retained their character of governance which is called as Republic of China. Now the People's Republic of China, जो mainland China है, it considers Taiwan as its own territory, but Taiwan considers itself different from mainland China. तो सारी लड़ाई इसी को चलते हैं. तो क्या होता है कि whenever some foreign dignitaries when they visit Taiwan, so China tries to intimidate Taiwan. So here also China has tried to do the same thing by sending 19 aircraft towards Taiwan on Thursday amid rising tensions across the straits. यहाँ पे कौन सी स्टेट है? ये ताइवान स्टेट है. ओके, नाउ why at this time the Air Force jets is being sent to Taiwan? Because Taiwan has submitted an application
to become the member of CPTPP, that is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Trade Deal. Okay, days after China had formally applied to join the Pacific Pact. China is also already becoming the part, then Taiwan ने separately apply किया है. Okay, now what is happening over here is ये जो टाइज है, ठीक है ना, चाइना जो है वो ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है, बट अगर हम रूल की बात करें तो चाइना में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी रूल रहा है, बट ताइवान में हमेशा सिविल वॉर के बाद 1949 से KMT का रूल रहा है, ठीक. पर जब से एक पार्टी आई है विच इज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ओके, तो इन दोनों के बीच में टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया है. सो द ऑल इशू इज अबाउट द वन चाइना प्रिंसिपल. चाइना चाहता है कि देयर शुड बी अ वन चाइना प्रिंसिपल टू बी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, बट ताइवान refuses it or formally rejects it. The same problem is going on with Hong Kong also. उसके बाद the next news is about the Pakistan's minister who is saying that international community must engage with Taliban and there is a roadmap needed for diplomatic recognition. इसको आप कल के न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं, जब कल के न्यूज़ में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था तालिबान के कि वी नीड टू सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली to represent the views of Taliban. So now Pakistan is, it seems like Pakistan is definitely supporting the cause of Taliban, that international community must engage with Taliban. Okay. Now US has authorizes Pfizer booster shot for elderly and high risk adult. So US maybe the Delta variant has created a problem over there. Delta variant का problem ये है कि if anybody takes vaccine and the vaccine will save that patient from fatal transmitting the disease to fatal stage, but infection को रोक नहीं सकता. Okay, the protection offered by the Pfizer vaccine or any other vaccine against Delta variants is quietly reduced. That's why US has planned the booster shots. The next is European Union, ठीक है ना. तो यूरोपियन यूनियन का एक बॉडी है यूरोपियन कमीशन. It has presented a proposal that there should be a common charging port for mobile phones, tablets and headphones under the European Commission proposal. This move, okay, according to European Union, it is going to benefit environment and it is going to save about 250 million euros annually. But यहाँ पे कौन से चार्जर्स यूज होने वाले हैं? USB-C connector will become the standard port for all smartphones, tablets, cameras, headphones, portable speakers and handheld video game कंसोल्स. मतलब कि अब सारे कंपनीज को एक ही टाइप का चार्जर बनाना पड़ेगा. तो इसको एप्पल ने मूव किया है, ठीक है ना, सॉरी इसको अपोज किया है कि ये इनके जो इनोवेशन है, क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चार्जर बनाती है. सो एप्पल का कहना है कि दिस विल हार्म आवर इनोवेशन. नाउ इन्फोसिस IT पोर्टल पे प्रॉब्लम आया था, देयर वाज ग्लिचेस. नाउ इन्फोसिस को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुलाया भी था कि टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. सो द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल्स डेवलपर इन्फोसिस हैज सेड दैट दे आर मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस ऑन रिजॉल्विंग दिस ग्लिचेस. ओके, एंड दे आल्सो एक्नॉलेज दैट येस some users may continue to face difficulty but they will fix it very fast. Okay, now the next news is UAE के साथ जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने वाला है, तो वहाँ के जो ट्रेड मिनिस्टर है थानी बिन अहमद अल जियाउदी, इन्होंने एक डेडलाइन बताया है कि मार्च 2022 तक हम कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा. ओके, और ये जो पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड UAE, इट विल बी अमंग द फर्स्ट ऑफ सेवरल दैट यूनाइटेड अरब एमिरात इज एक्सप्लोरिंग. ओके, एंड UAE खास करके इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इट इज़ परसुइंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील्स विद अदर कंट्रीज ऑल्सो सच एज UK, तुर्की, केनिया एंड साउथ कोरिया. ओके, उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्यूटीज़ लगती हैं सर्विस एक्सपोर्ट पे, इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है. सो गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड SEIS रेट्स फॉर 2019-20 एंड इट हैज़ सेट द सीलिंग
of rupees 5 crore on benefits to the industries. नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSAP प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, उसका पहला हो चुका है जिसमें 35,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI ने परचेज किया. नाउ द सेकेंड फेज विल बी वेयर द गवर्नमेंट विल बी परचेजिंग रुपीज 15,000 करोड़. ओके, now we will go to editorials. okay, now इस एडिटोरियल में हम जो एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं उसका एक बहुत बेस्ट सिनॉप्सिस आया हुआ है. सो अभी ऑकस ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US का एक सिक्योरिटी अलायंस बना हुआ है एंड यहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि इंडिया डज नॉट वेलकम द अनाउंसमेंट नॉट डज इट विश टू लिंक ऑकस टू इंडियन इंटरेस्ट. कि मतलब इसमें इंडिया का कोई लेना देना है नहीं. ओके, और सेकेंड इज़ दैट इंडिया इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ US क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, और जो उनके प्लान्स हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा. तो दिस टू आर वेरी डिफरेंट. अच्छा, इंडिया ये भी नहीं कह रहा है कि डज नॉट सी AUKUS एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब क्योंकि इसका जो कोर स्ट्रेटेजी है AUKUS का, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया विल बी गिवन द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बाय द US. ओके, फिर यहाँ पे ये है कि बाकी कंट्रीज ने तो यहाँ पे कोई रिएक्शन दिया नहीं है, ना EU ने दिया है ना एशिया ने दिया है. ओके, एंड इंडिया ने भी कोई ऐसा खास कोई कमिटमेंट दिखाया नहीं है. सो हियर इट इज़ लाइक दैट US जो है वो एक ऐसा पार्टनरशिप, एंग्लो सैक्सन पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको वो प्रमोट कर रहा है टू टैकल द इंडो पैसिफिक रीजन. एंग्लो सैक्सन का हमने कल भी पढ़ा था, 5 आइज इंटेलिजेंस करके है, जिसमें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UK दे आर द पार्ट. ये World War II के टाइम बना था. उसके बाद जैसे कि हमने न्यूज़ पढ़ा, वाइटल रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, क्योंकि पहले सेक्शन 12(3) ऑफ द NDMA एक्ट के तहत तो NDMA कैन प्रपोज द एक्स ग्रेशिया अमाउंट. तो पहले गवर्नमेंट ने बताया था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव एक्स ग्रेशिया अमाउंट और रिलीफ अमाउंट बिकॉज गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो बहुत स्ट्रेन हो जाएगा. बट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, मेडिएशन के बाद, नाउ द मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हैज़ नाउ एग्रीड फॉर गिविंग द रुपीज़ 50,000 एक्स ग्रेशिया अमाउंट. और अभी हमने पढ़ा कि अब उन लोगों को भी मिलेगा जो 30 दिन जिनमें वायरस डिटेक्ट हुआ, कोरोना वायरस, और वो 30 दिन में अगर वायरस के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया. नाउ कमिंग टू अ डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम फॉर द फ्यूचर. अब इस आर्टिकल के हम अगर देखेंगे कि इस आर्टिकल में मैंने डिस्कस क्या क्या हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे 2 डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस हुआ है. डॉक्टर जॉन स्नो ऑफ लंदन, वेयर ही यूज्ड द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा फ्रॉम जनरल रजिस्ट्रार ऑफिस इन लंदन. फिर उन्होंने इस डेटा को यूज़ किया. 1854 की ये बात है जब कॉलेरा फैल गया था लंदन में. और अब यह क्या हुआ कि जब इन्होंने पूरा डेटा प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मेजॉरिटी केसेस आए हैं. उस पर्टिकुलर एरिया का नाम था ब्रॉड स्ट्रीट एरिया. फिर इन्हें पता लगाया तो इन्हें पता चला कि ब्रॉड स्ट्रीट एरिया में एक कॉमन वाटर पंप है, वहीं से पानी आती है. तो यहाँ से पता चला कि कॉलेरा, अगर एक जगह से सब पानी ले रहे हैं और इसी एरिया में बीमारी ज़्यादा फैल रही है तो इसका मतलब कॉलेरा इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़ और ये इस पानी के सोर्स से बह रहा है. फिर एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है विलियम फार. अब विलियम फार क्या कहते हैं, ये डेटा सर्वेलेंस सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको ये डेवलप करते हैं. तो ये 1854 की बात है. ये फिर से डेटा यूज़ करते हैं फ्रॉम GRO, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन तो था लंदन का. उन्होंने फिर क्या किया कि कॉलेरा केसेस के डेथ्स वो पूरे मैप में बनाया और फिर उन्होंने कन्विंस किया लोगों को, अथॉरिटीज़ को लंदन में, कि वो जो वाटर पंप है उसको वहाँ से निकाल दो बिकॉज द डिजीज़ इज़ ब्रेकिंग फ्रॉम दैट. दे स्टार्टेड द एरिया ऑफ एपिडेमोलॉजी. सो एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़. ओके, अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एपिडेमोलॉजी और सर्वेलेंस का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग एनी डिजीज़. और इंडिया ने भी इसको पास्ट में
काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, खास करके 1997 और सार्स के बाद डिजीज़ सर्विलेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इंडिया में खास करके अगर हम कॉलेरा आउटब्रेक की बात करें, दिल्ली में 1988 और सूरत प्लेग ऑफ 1994, यहाँ पे इसके बाद गवर्नमेंट इट लॉन्च सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ इन 1997। ओके, उसके बाद ये मेथड इतना यूज़ नहीं हो रहा था, ये ऑब्सोलीट हो गया था। बट जब सार्स आउटब्रेक हुआ 2004 में, तो इंडिया लॉन्च्ड डिजीज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो था कि इसका था कि अंडर दिस प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट विल फंड फॉर डिजीज सर्विलेंस, स्ट्रेंथनिंग द लेबोरेटरी कैपेसिटी, ट्रेन द हेल्थ वर्कफोर्स एंड हैव एटलीस्ट वन ट्रेंड एपिडेमोलॉजिस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे आउटब्रेक्स, नए डिजीज़ के आउटब्रेक्स भी होने लगे। सो ऑन दिस तो व्हाट हैपेंड दैट जब कोविड-19 आया तो हमारा ये जो एपिडेमोलॉजी और डिजीज़ सर्विलेंस का जो पूरा मैकेनिज़्म था वो बहुत पहले से ही तैयार था। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को काफ़ी हेल्प मिला टू रिस्पॉन्ड एंड टू गाइड द रिस्पॉन्स एंड टू कोऑर्डिनेट द एक्शन फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड रैपिडली स्केलिंग अप द टेस्टिंग। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देखेंगे कि हम दो स्टेट्स की बात करें। अगर केरला का एग्जाम्पल लें और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, तो केरला में देखेंगे तो केरला में एक तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहते हैं कि केरला का जो डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी जगह इसीलिए केरला ने निपा वायरस का भी आउटब्रेक बहुत जल्दी पकड़ लिया। अगर हम बात करें कुछ और स्टेट्स की, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बीमारियों से मर रहे हैं, बुखार से मर रहे हैं और उनको एक मिस्ट्री फीवर का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। बट हम ये भी देख रहे हैं कि इसी वक्त केसेस ऑफ डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफस, दे ऑल आर इंक्रीजिंग। ओके, बट तो भी इन स्टेट्स में वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमको फिर से इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के ऊपर जोर देना चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को कोलाबोरेट करना चाहिए विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही कुछ रिकमेंडेशंस दी थी टू इंक्रीज द डिजीज सर्विलेंस, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन, ensuring adequate number of trained human resources, strengthening laboratories and zoonosis, इन्फ्लुएंजा और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्विलेंस। तो अब इनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम हमारे पास आ चुका है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोर्सेज देखें तो पहला है कि भाई पहले हमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड जो है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो पहला होता है किसी भी आउटब्रेक, कोई भी डिजीज़ होने के बाद, जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड, बी इट इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्कफोर्स बढ़ाना पड़ेगा कि ताकि डिजीज सर्वेलेंस और जो हेल्थ एक्शंस है फ्रॉम द अथॉरिटीज़ वो ठीक से हो सके। थर्ड है कि हमें लेबोरेटरीज बनाने होंगे। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एक्सपांड द लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने कोविड-19 में भी किया था, ताकि जहाँ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ टेस्टिंग होती रहे। चौथा है कि हमें जो है ध्यान देना होगा वन हेल्थ अप्रोच पे, ठीक है, कि डिजीज़ कहीं से भी आए बट वी वांट आवर पॉपुलेशन टू बी सेफ। फिफ्थ, जैसे कि हमने कोविड-19 में देखा था, एक्सेस डेथ का केसेस जो हैं डेथ के वो ठीक से रजिस्टर नहीं हो पाए बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स वर टेकिंग प्लेस। तो हमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम डेथ डेटास कलेक्ट कर सकें। फिर हमें स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा सो दैट पब्लिक हेल्थ और डिजीज सर्वेलेंस के अच्छे से ख्याल रखी जा सके। सो दिस इज द आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है ये क्लाइमेट चेंज से आ रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हैं जो हमें काम देंगे एग्जाम में। तो अगर हम आगे चलें तो एक हम रिपोर्ट की अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, तो रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिलीज़ किया था। इसमें बताया गया है कि इंडिया 1901 और 2018 के बीच में इट हैज़ ऑलरेडी वार्म्ड अप बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज़ कि 2010 और 2019 के बीच में वी हैड द हॉटेस्ट
ईयर विद द मीन टेम्परेचर ऑफ 0.36 डिग्री सेल्सियस हायर देन एवरेज। उसके बाद हीट वेव्स, ग्रीन हाउस गैसेज, ऑल दिस आर इंक्रीजिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में एक और चीज़ कही गई है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज टेल दैट इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें डिज़ास्टर की, तो इंडिया में जो डिज़ास्टर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि जब साइक्लोन अम्फान आया था तो इंडिया का जो लॉस था इट वाज $13 बिलियन। ओके, उसके बाद लाइव जो लॉस हुआ था इन जून अक्टूबर मानसून फ्लडिंग वो 1600 था और $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। ओके, उसके बाद इंडिया में साइक्लोन्स भी बढ़ चुके हैं। साइक्लोन तौकते आया था वेस्ट कोस्ट पे और साइक्लोन यास आया था ईस्ट कोस्ट पे। अब जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स हैं या पॉपुलेशन जिसको हम आईडीपी कहते हैं वो भी इंडिया में बढ़ रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में केदारनाथ फ्लड आने के बाद वहाँ से लोग हटने लगे, कहीं कहीं और जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लड भी आया था और रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है कि बाय 6% बढ़ जाए। अब एक डेटा है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इज 235 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया ड्यू टू कोस्टल इरोजन एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज। ओके, इंडियंस का अगर हम डेक्कन प्लेटो की बात करें, डेक्कन प्लेटो मतलब हमारा महाराष्ट्र और हमारा ये वाला एरिया जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में आता है, तो यहाँ से भी लोग ड्राउट के चलते, वाटर क्राइसिस के चलते दे आर लिविंग दिस एरिया। यहाँ पे एक हटकरवाड़ी विलेज का नाम यूज़ हुआ है बीड डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे पहले पॉपुलेशन 2000 हुआ करती थी, अब 10 से 15 ही है। तो अब अगर हम देखें कि गुड पॉलिसीज़ वीक प्रैक्टिस, तो इंडिया के पास पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक हैं। इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, इसको INDC या NDC कहते हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट में एग्री हुआ था। तो इंडिया के NDCs 3 हैं। पहला कि reducing the emission and intensity of GDP by 33 to 35%, increasing the green energy sources non-fossil fuel based to 40% of installed electric power capacity by 2030। साथ साथ में पेरिस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेटअप किया, which is a coalition of 120 countries with solar rich resources. It aims to mobilize $1 trillion of investment for deployment of solar energy at affordable price by 2030। इन सब के बाद भी इंडिया का जो रिकॉर्ड है which is measured by the climate change performance index वो बहुत अच्छा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया जो है इट कैन अचीव द 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज टू द UNFCCC। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोपेनहेगन ओके को अचीव कर सकता है, बट ये भी कहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट इन फुल्ली कंप्लायंट विद पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लिमिटिंग द ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर एट 2 डिग्री सेल्सियस। अब इन सब के बीच में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में होने वाला है, जिसको इंडिया यूज़ कर सकता है और अपने NDCs को अपडेट कर सकता है टू मीट द टारगेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि बाय 2027 इंडिया इज़ गोइंग टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल क्लाइमेट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न ही इस तरीके का होगा। सो इंडिया कैन यूज़ COP26 टू बॉल्स्टर इट्स कमिटमेंट टू अचीव द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट। यहाँ पे दिस इज़ द इंटरव्यू। एक इशू जो बहुत दिनों से चल रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके नीट को अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलाउ नहीं किया है। यहाँ पे जो बात हो रही है इट इज़ अबाउट अर्बन वर्सेस रूरल की बात हो रही है। कल हिंदू में भी आया था कि नीट इंट्रोड्यूस होने के बाद तमिलनाडु में रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन कम हुआ है और अर्बन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो तमिलनाडु में नीट के पहले मेडिकल एडमिशन्स वर बेस्ड ऑन 12th स्कोर। सो अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट, जब हम 12th का स्कोर यूज़ करते हैं तो उसमें रूरल बैकग्राउंड के बच्चे को भी मौका मिल जाता है अपना टैलेंट प्रूव करने का और एडमिशन लेने का। बट जब हम कंपटीशन लाते हैं, हम नीट जैसा एग्ज़ाम लाते हैं, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे जो रिसोर्सफुल बच्चे हैं, जो अच्छे
फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कंपटीशन में कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ती है और कोचिंग की फीस वही पे कर सकते हैं जो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट में ये डिस्कस हुआ है कि गवर्नेंस और डेटा कितना ज़रूरी है, डिजिटल सिस्टम कितना ज़रूरी है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बिकॉज स्मार्ट डिजिटल सिस्टम इज़ अ स्मार्ट सिस्टम दैट जनरेट्स डेटा बाय डिफ़ॉल्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। ओके, उसके बाद it also enables citizen-centric governance model. So that's all for today. We will meet tomorrow again with our new daily analysis. Take care. Have a nice day. Thank you.